हम लोग अभी तक जो अध्ययन किया उससे हमें यही पता चलता है एक बहुत बड़ा उपनिषद या शास्त्र जो वेदांत के सार जिसको कह सकते हैं उस स्वामी विवेकानंद जी ने हमारे सामने रखा है। हमने इसमें 4 महावाक्य जो वेदांत के हैं वो कैसे इसमें समाहित हुए हैं इसका भी अनुशीलन किया था। बहुत ही अद्भुत ऐसा ये स्तोत्र आज टाइम में भी हुआ तो हम लोग उसका यहाँ समाप्त करने का प्रयास करेंगे। एक बार मैं पूरा इंग्रजी में जो स्वामी विवेकानंद जी ने जो बनाया है उसे एक बार पूरा पढ़ता हूँ क्योंकि आज शायद पूरा होगा, एक साल पूरा हम करेंगे। Wake up the note, the song that had its birth far off, where worldly pain could never reach, in mountain caves and glades of forest deep, whose calm, no sigh, for lust or wealth or fame, could ever dare to break, where rolled the stream of knowledge, truth and peace, that follows both, sing high that note, sannyasi in bold say, Om Tat Sat. Strike off the fetters, bonds that bind thee down, of shining gold or darker vessel, love, hate, good, bad, and all the 12 throng, no slave, pierced or betrayed, not free, for fetter thou of gold are not less strong to bind, then off with them, sannyasi, bold say, Om Tat Sat. Let darkness go, the will for the wish that leads with blinking light to fill more gloom on gloom. This thirst for life forever pinch, it drags from birth to death and death to birth the soul. He conquers all who conquers self, know this and never yield. Sannyasi, bold say, Om Tat Sat. Whose souls must stray, they say, and cause must bring the sure effect. Good, good, bad, bad, and none escape the law. But whose wear the form must wear the chain, too, true. But hard won both name and form is Atman, ever free. Know thou art God, sannyasi, bold say, Om Tat Sat. They know no truth. Who dreams such vacant dreams as father, mother, children, wife and friend? The sexless self, whose father he, whose child, whose friend, whose foe is he, who is but one? The self is all in all, none else exists, and thou art the sannyasi in bold say, Om Tat Sat. There is but one, the free, the knower, self, without a name, without a form or stain. In him is Maya. Dreaming all this dream, the witness, he appears as nature, soul. Know thou art God, sannyasi, bold say, Om Tat Sat. Where seekest thou that freedom plain this word? Not that can view in books and temples when thy search. Thing only is the hand that holds the rope that drags thee on. Then chase lament, let go thy hold, sannyasi, bold say, Om Tat Sat. Say, peace to all, from me no danger be, to aught that lives, in those that dwell on high, in those that lovely free. I am the self in all life, both here and there. No, do I renounce? All heavens and earths and hells, all hopes and fears, the cut thy bound, sannyasi, bold say, Om Tat Sat. Heed then no more how body lives or goes, its task is done. Let karma put it down, let one put garland on, another kick. This fame, say not. No praise or blame can be, where praise or praise and blame or blamed are one. Thus be thou
Tam Sannyasin, bold say Om Tassat Om. Truth never comes where lust and pain and greed of gain reside. No man who thinks of woman as his wife can ever perfectly, nor he who owns the least of things, nor he who anger chains can ever pass Maya's gate. So give this up, sannyasi, bold, say Om Tassat Om. Have thou no home, what home can hold thee plain? The sky, the roof, the grass, thy bed, the food. The sky, thy roof, the grass, thy bed and food. What chance may bring, well cooked or ill, judge not. No food or drink can tend that noble self, which knows itself like rolling river free. Thou ever be sannyasi, bold, say Om Tassat Om. If you only know the truth, the rest will hate and laugh at thee, great one, but pay no heed. Go thou, the free, from place to place, and help them out of darkness, Maya's veil, without the fear of pain or searching of pleasure. Go beyond them both, sannyasi, bold say Om Tassat Om. Thus, day by day, till karma's power spent, release the soul forever. No more is birth, nor thou, nor God, nor man, the I, has all become, the all is I. And this know thou art that sannyasi, bold say Om Tassat Om. तो मूलतः ये 13 स्ट्रांजा है, 13 श्लोक है जो स्वामी विवेकानंद जी ने अंग्रेजी में लिखे थे। इसका इतिहास भी हमने देखा था। एक अलग भावभूमि पर उन्होंने इसकी रचना की थी। तो स्वामी जी के ओरिजिनल शब्द है, हमने ये भी देखा था, इतना महान जो वेदांत का सार, ऐसा ये गान स्वामी विवेकानंद जी ने अपने भाव में रचाकर इसको ऐसे ही रख दिया था। और करीब करीब 60 साल के बाद इस ओरिजिनल ये हमको प्राप्त हुआ। आज भी वो संग्रहित करके रखा है। तो पहले से हमने जो पढ़ा वो हमने देखा, उस कैसे स्वामी जी कहते हैं जो वेदांत के उच्च तत्व जो हम लोग हमारे उपनिषद है, वेद है, ये देखते हैं ऋषि मुनि ने कैसे उसकी रचना की, तो एकांत में बैठकर रचना की। वैसे ही स्वामी जी कहते हैं ये उच्च तत्व जो संन्यास में हमारा जो भावना है, जिसको कॉन्शियसनेस कहते हैं, या मुक्ति का मार्ग है, वो तत्व एकांत में हम लोग ध्यान के द्वारा, आत्मचिंतन के द्वारा उसको प्राप्त कर सकते हैं। इससे शुरुआत कर स्वामी जी ने उसके आत्मचिंतन में आने वाली बाधाओं को भी आगे के श्लोक में कहा था कि जो इसको बांधने वाली बेड़ियाँ हैं संसार में हमको बांधने वाली, वो बेड़ियों को हमको तोड़ना पड़ेगा, वो बंधनों को तोड़ना पड़ेगा। और वो बंधन चाहे प्यारे भी हो सकते हैं, दुखदायक भी हो सकते हैं। गोल्डन चेन और स्वामी जी कहते हैं आयरन चेन, दोनों हो सकते हैं, दोनों को हमको तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि एक स्वर्ग में डालेंगी, एक दूसरी नर्क में डालेंगी, लेकिन दोनों से भोगने के बाद फिर से हमको भूतल पर मृत्युलोक पर आना पड़ेगा। उसके बाद हमें मूल तृष्णा, हमारी जो इच्छा वासनाएं होती है, वह कैसे हमें क्षणिक भोगों में लटकाकर कैसे जन्म के बाद मरण के बाद जन्म में कैसे हमें घिसटती रहती है, ये भी स्वामी जी ने आगे की इसमें कहा था। और ये भी कहा था जो हम बोते हैं वही हमको फसल के रूप में आता है और उसको काटना पड़ता है। तो शुभ अशुभ ये हम जो कर्म हम करते हैं वो कभी छूटते नहीं, वो हमें उसका फल देते ही है। तो हमें ये धैर्य धारण करना पड़ा है, क्योंकि हमारे पीछे के शुभ और अशुभ कर्मों के कारण। तो इसके पार हमें जाना है और आत्मतत्व में विलीन होना है, नाम रूप के परे हमें जाना है। ये 4 श्लोक में स्वामी जी ने हमको कहा था। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो व्यर्थ के स्वप्न हम देखते हैं, जो आशाएं को जो कभी भी हमें जीवन में सुख नहीं देती, ऐसे आशाओं को हम देखते रहते हैं, स्वप्नों को देखते
वैकेंट ड्रीम स्वामी जी शब्द यूज करते हैं। तो उसके कारण हम सत्य को नहीं जान सकते। तो हमें सब समय मन में रखना है कि हम ये नश्वर देह नहीं है, तो आत्मा है। तो आत्मा कैसा है, तो स्वामी जी वो भी कहते हैं लिंग रहित है, उसको कोई बंधन नहीं है। तो ये जानकर हमें उस वेदांत का अध्ययन करना है, चिंतन करना है। और मैं ओम तत्सत ओम, वही ओम है, वही सत्य है, वही के तत्व, वही वो तत्व है, ये भावना कर कर इस बंधनों के पार जाना है। और नेम प्रेम को स्वामी जी कहते हैं कि नाम रूप ये सब व्यर्थ है। हम साक्षी रूप से इसका अनुभव कर कर उस आत्म तत्व में, आत्मचिंतन में चिंतन कर कर उस तत्व तक पहुंचना है। फिर आगे 7वें श्लोक में स्वामी ने ये भी कहा कि Here seekest thou that freedom trained this world, not that can you in books and temples human। वो स्वामी कहते हैं ये मुक्ति कैसी है, ये मित्र, स्वामी यहाँ मित्र करते हैं, फ्रेंड शब्द यूज करते हैं। तुम कहाँ खोज रहे हो, तो व्यर्थ ग्रंथों में, मंदिरों में इसके कुछ नहीं है, वो तुम्हारे अंदर ही है। सब छोड़ो, सारे मोह को छोड़ो, और तब वो तुम्हारे अंदर ही वो शांति मिलेगी। उसके बाद 8वें श्लोक में स्वामी जी कहते हैं से पीस टू ऑल फ्रॉम मी नो डेंजर बी। हमने इसका विस्तृत वर्णन देखा था। ये संन्यास की फ्रेम, संन्यास क्या होता है उसका एक पूरा फ्रेम स्वामी जी ने इस श्लोक में दिया है। से पीस टू ऑल फ्रॉम नो मी नो डेंजर बी टू ऑट दैट लिव्स इन those that dwell on high, in those the lowly breed, I am the self in all। वही सभी में व्याप्त हूँ, सबके अंदर वही भरा हूँ। तो एकत्व की एक भावना हमें मन में रखनी है, और यही एक संन्यास का आदर्श होता है कि जो आत्मा मेरे अंदर है वही आत्मा सबके अंदर विराजमान है। इसको हमने पूरा डिटेल में देखा था। उसके बाद 9वां जो श्लोक है, हीड दे नो मोर हाउ बॉडी यूज और बोन्स, टास्क इज डन, लेट कर्मा पुट इट डाउन। इसका भी थोड़ा सा हमने देखा था कि हमें बाकी चीज़ों का विचार नहीं करना है कि एक बार शरीर का प्रारब्ध का क्षय हो जाएगा, फिर दे नो मोर हाउ बॉडी यूज और बोन्स, उसके बाद शरीर रहे क्या और गए क्या। तो और स्वामी जी आगे कहते हैं लेट वन पुट गार्लैंड्स और अनदर किक। जो इसका प्रारब्ध का क्षय होता है, जिसलिए मानव शरीर प्राप्त हुआ है, वो भी हमें जब प्राप्त होता है उसके बाद ये शरीर रहा क्या गया क्या उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट वन पुट गार्लैंड्स ऑन अनदर की, कोई उसको माला पहने या कोई उसको लात मारे झटका ले, तो उसका विचार नहीं करना चाहिए। ये शरीर जिसके लिए है उसको हमें प्राप्त करना है। फेम से नॉट, नो प्रेज और ब्लेम कैन बी, प्रेज और प्रेज एंड नेवर ब्लेम। दोष देने वाले दोष देंगे, स्तुति करने वाले स्तुति करेंगे। हमें इसमें लटक के रहना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा फिर से शुभ अशुभ कर्मों की हमें उत्पत्ति करेंगे, फिर से हमें जन्म मृत्यु के चक्र में आना पड़ेगा। तो इसके तरफ हमें नो हीड देन नो मोर, इतना स्ट्रांग शब्द यहाँ स्वामी ने किया है, उसका ख्याल ही मत करो, आगे बढ़ो। स्वामी जी के खुद के जीवन में हमने पहले ही देखा था, ये सन्यास का गीत है, स्वामी जी का जीवन का एक कहते हैं ना पूरा एक रिफ्लेक्शन इसमें आया है कि स्वामी जी ने खुद के जीवन में जी के देखा है। वो कभी उन्होंने इतने एक पैसा भी पास में न रखते हुए पूरा भारत का भ्रमण किया, विदेश में गए, हम उनके जीवन में जो घटना देखते हैं, कभी भी उन्होंने कौन क्या कह रहा है इसके तरफ ख्याल नहीं दिया। उनको जो गुरुदेव ने आदेश दिया था, जिसलिए वो आए थे इस धरातल पर, उसको ही सामने रखकर उन्होंने ये जो श्लोक में दिया है अपने जीवन में उन्होंने दिखा दिया। तो ऐसा ही महान जो स्तोत्र है हम लोग यहाँ तक देखे थे कि जीवन 9वें श्लोक में हमने देखा कि कैसे जीवन मुक्त रहता है। तो उसको शरीर के बारे में, शरीर किस लिए है तो कहते हैं मनुष्य शरीर खाली बार बार कहते हैं ईश्वर के प्राप्ति के लिए है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है और कुछ भी नहीं है। तो स्वामी जी वही तत्व इस श्लोक में कहना चाहते हैं कि हमें जिस लिए ये मिला है उसको हमें प्राप्त करना है। बाकी
क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमें देखना नहीं है। अभी मन में हमें एक प्रश्न आता है कि क्या इसका मतलब स्वामी जी यहाँ कहते हैं कि फिर देन नो मोर हाउ बॉडी यूज और वो शरीर गया क्या रहा क्या, कौन माला पहनाएगा, कोई उसका धुतकार करेगा, उसको ख्याल नहीं देना। इसका मतलब ऐसा है कि हमको शरीर का ख्याल नहीं रखना, ऐसा नहीं है। तो यहाँ हमें एक चीज़ ख्याल में रखनी है जो अंतिम सत्य है कि ये शरीर एक ना एक दिन जाने वाला है। एक महात्मा कहा करते थे कि जिस शरीर के द्वारा भगवान का नाम उच्चारण नहीं होता वो शरीर मुर्दा जैसा। अभी आत्मज्ञानी महापुरुष ही ये चीज़ कहते हैं। ठाकुर का भी देखिए कथामृत में कभी कभी ऐसे शब्द आते हैं, हमें लगता है ये हमारे लिए कैसे संभव है, कैसे कहा, क्योंकि ठाकुर उस तत्व को जाने थे कि एक दिन जाने वाला है, ये संसार भी जाने वाला है। जैसे हृदयराम एक दिन ठाकुर को कुछ चीज़ें सांसारिक चीज़ें कह रहा था। ठाकुर ने कहा, हृदय यदि ये जगत सत्य होता ना तो मैं पूरा कामार को सोने से मर देता। वो जानते थे इसमें वो एक इंसाफ हमको छोड़ना है। तो जो भी हमें देखता है, देखने में आता है, वो सब कुछ जाने वाला है। शरीर का भी ऐसा है, अस्थि जायते वर्धते परिणमते क्षीयते नश्यते। ये षट्विकार शरीर को भी लगे हैं, सब चीज़ों पर है। हम देखते हैं अस्थि मैंने हम कहीं तो भी थे, माँ के गर्भ में थे, कहीं तो भी हमारा अस्तित्व था। और फिर क्या हुआ, जायते हम फिर जन्म हुआ, मैंने जो थे फिर हम जन्म लिए, वर्धते फिर हम धीरे 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 बड़े हो गए। फिर उसके बाद परिणमते हमारे अंदर कुछ चेंज होने लगा। हम बालक थे, उसके बाद युवक हुए, उसके बाद वृद्ध होंगे। ये स्थितियाँ है शरीर की। और दूसरा आता है क्षीयति, डिटोरेशन, सबका होता है। किसी को भी नहीं कि वो जन्म हुआ तरुण ही रहा, पूरा जन्म नहीं हो सकता। नचिकेता ने भी यही जो यम को वरदान मांगा तो यम ने भी कहा कि तुमको ये मैं देता हूँ कि तुम्हें पूरा पृथ्वी का जितना भोग है वो दे दूंगा, अनेक लाखों वर्ष का तुम्हें यौवन दे दूंगा। लेकिन नचिकेता ने यही सोचा कि एक ना एक दिन तो ये जाने ही वाला है, कितना लाखों साल के बाद तो नष्ट होने वाला है, तो ये सबको होने वाला है, तो वो नहीं चाहिए, वो तत्व मुझे चाहिए। तो जो भी चीज़ है इसको ये क्षणविकार, हर एक शरीर जब प्राप्त हम धारण करते हैं तो लगे ही रहते हैं, उसका क्षीयते वार्धक्य आता है और एक दिन नश्यति, अस्थि जायते वर्धते परिणमते क्षीयते नश्यति। ये सब क्षणविकार सबको लगे हुए हैं। क्षीयते में वैनिश, लेकिन वो नष्ट होने वाला है। तो ये शरीर की स्थिति है। स्वामी जी इस तत्व को रियलाइज किए थे खुद के जीवन में, इसलिए वो कहते हैं लेट कर्मा फ्लोट इट डाउन, लेट इट वन पुट गार्लैंड और अनदर किक। कोई उसकी स्तुति करे, उसको झुटकारे, हमें उसको ख्याल नहीं देना, क्योंकि एक दिन छूटने वाला है। किस लिए प्राप्त हुआ है उसके पीछे लगो, हम क्यों इधर उधर देखना नहीं। जिस रास्ते से हम जा रहे हैं उस स्थिति को हमें प्राप्त करने तक हमें इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। जो संस्कृत हमने उसका अनुवाद देखा था उस दिन, वो भी सुंदर अनुवाद हुआ है। तो उसमें भी यही कहते हैं, देहस्थ स्थिति स्यात् वा अति जवान पतनम स्यात् इति न चिंतम। फिर दे नो मोर हाउ बॉडी यूज अपोज इट टास्क इज डन। एक बार उसका जो उद्देश्य था वो सिद्ध हुआ तो उसके बाद चिंता मत करो कि गया या न रहा, कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है। तो ये ठाकुर ने भी कहा है, जैसे हमें कुआं खोदने के लिए हम औजार इकट्ठा करते हैं, कुदाल फावड़ा सब लेते हैं, और जब कुआं खोदने के बाद हमें जब पानी मिलता है उसके बाद वो औजारों को रखो या फेंक दो। कोई बोलता है दूसरे के काम में आ जाएंगे, कोई उसमें छोड़ देता है। तो जब उसका काम हमें जिसके लिए हमें लाया था उसका उद्देश्य पूरा हुआ, वो रहा क्या फेंक दिया क्या, उसका कोई मायना नहीं रहता है। वैसे इस शरीर को हमें खाली ज़्यादा उसको वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, लेकिन शास्त्र यही कहता है कि भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि मध्यम पंथा, इसको हमें
शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये धर्म साधन के लिए एक नौका है। इस संसार सागर को पार करने के लिए हमें भगवान ने एक नौका रूपी शरीर दिया है। वो दृष्टि से ही उसको हमें उसकी ऊपर ख्याल देना चाहिए। शंकराचार्य भगवान भी उनके शिव अपराधमापन स्तोत्र में भी यही कहते हैं, आयुर्नश्यतां प्रतिदिनम याति क्षयं यौवनम प्रत्यायान्ति गता पुनर्न दिवसा कालो जगत भक्षति लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपला विद्युच्चलम जीवनम तस्मात् त्वां शरणागत मम दीनबंधो। तो शंकराचार्य भगवान भी यही कहते हैं कि आयु नश्यति प्रतिदिनम, हमारा दिनों दिन प्रतिदिन हमारा आयुष्य कम होते जा रहा है। एवरी मोमेंट वी आर गोइंग टुवर्ड्स द क्रिमेशन ग्राउंड। आयु नश्यति प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम, हमारे यौवन का प्रतिक्षण ह्रास हो रहा है। याति क्षयम यौवनम प्रत्यायान्ति गता पुनर्न दिवसा, माने जो काल निकल जाता है वो फिर से नहीं आता है। जैसे आज 13 अगस्त है, 13 अगस्त का 7 बजे, अगले 24 का आएगा, 23 का चला गया। प्रत्यायान्ति गता पुनर्न दिवसा कालो जगत भक्षति, जो चला गया है काल फिर से नहीं आएगा। दूसरा 13 अगस्त आ सकता है, ये नहीं आएगा। कालो जगत भक्षति, काल क्या हो रहा है? जगत को खा रहा है। लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपला, और लक्ष्मी कैसे है? हम जिसके पीछे दौड़ते रहते हैं वो तरंग भंग चपला, वो एक जगह नहीं रहती। आज इधर है, कल दूसरे के पास, परसों दूसरे के पास, वो तरंग भंग चपला। और जीवन कैसा है? विद्युत चलम जीवनम, मैंने जैसे आकाश में हम लोग बीज को देखते हैं, वो यहाँ देखा, अरे हाँ यहाँ हमने देखा, दूसरी दिशा नहीं होती, दूसरी जगह होती है। वैसे विद्युत चलम जीवनम, अभी अभी देखी चली गई, वैसे अरे कल था आज गया। तो ऐसा जीवन है। तो क्या उपाय है? तो बस वो भगवान को शरण आ जाओ, उनके चरण पकड़ो और उनका भक्ति करो, यही उपाय है। तो ये सब शास्त्र हमें यही कहता है। जिससे हमें यही मीनिंग लेना है कि हमें देहात्म बुद्धि रहित होना है। हम आज सब जो बंधन हमें या संसार में जो हम जन्म मृत्यु के चक्कर में आने का ना, देह को लेकर सब हमें जो भी क्रियाकलाप हो रहा है देह को लेके हो रहा है। तो देहात्म बुद्धि हमें धीरे 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 कम करने। तो वो कैसी होगी? तो पहले हमने देखा था नित्यानित्य वस्तु विवेक, जो सब नित्य क्या है अनित्य क्या है उसका विवेक करना है, नित्य को पकड़ना है, अनित्य को छोड़ना है। ठाकुर ने सिंपल शब्दों में यही बात कही है कि सब कुछ करो लेकिन एक को प्राप्त करो, उसके बाद उसको ऊपर जीरो लगाओ, उसको वैल्यू आएगी। हम क्या कर रहे हैं? खाली जीरो 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 ले रहे हैं। तो पहले एक के पकड़ो, भगवान को पकड़ो, तो बाकी सब चीजें हमें कोई हानि नहीं पहुंच पाएंगी। तो ये देहात्म बुद्धि जो हमारे जीवन में दृढ़ हुई है, उसको हमें ईश्वर आसक्ति, देहासक्ति को कम कर ईश्वर की आसक्ति को हमको दृढ़ करना है। तो यही हम जब करेंगे तो स्वामी जी कहते हैं कि एक टास्क है डन। तो इसका जो कुछ कर्म था वो चला गया, तो अभी उसको रहा क्या हो गया क्या? जो ये कहते हैं ना, यो कामो निष्काम आप्त कामो न तस्य प्राणाम उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सत् ब्रह्म प्रेति। जो कामनाओं का दास नहीं है ना, जो अकाम है, निष्काम है, आप्त काम है, तो वो क्या होता है? वो ब्रह्म का स्वरूप होता है। ब्रह्म में ही ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। वही चीज़ माँ शारदा देवी ने सिंपल शब्दों में कहा है। हमारे जन्म लेने का या फिर से हमें जन्म लेने का कारण क्या है? तो वासनाओं की मुक्ति हो जाएगी, तो हमें फिर से इस जन्म मृत्यु के चक्र में आना नहीं पड़ेगा। यही तत्व स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। थोड़ा सा शब्द हमें लगता है कि शरीर के बारे में ऐसा कहते हैं, लेकिन स्वामी जी ने खुद के जीवन में इसने अनुभव किया है। वही तत्व हमारे सामने रखा है कि हमें शरीर आसक्ति को, देहात्म बुद्धि को धीरे 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 कम कर ईश्वर के प्रति हमारे मन को मोड़ना है, तभी हम उस तत्व को पाएंगे। नहीं तो फिर से वही जन्म मृत्यु के चक्कर में हमें आना पड़ेगा। तो उसके बाद स्वामी जी
आगे के श्लोक में कहते हैं कि truth never comes where lust and fame and greed of gain resides. No man who thinks of woman as his wife can ever perfect be. तो यहाँ स्वामी जी कहते हैं truth never comes. अभी इसका हिंदी भी हम लोग देखते हैं, बहुत सुंदर अनुवाद हुआ है। सत्य प्रकट न हो जहाँ है मल यश लालच। कहाँ सत्य प्रकट नहीं हुआ होगा? जहाँ पे अशुद्धि है और यश की, नाम की, प्रतिष्ठा की लालसा है, वहाँ सत्य प्रतिष्ठित नहीं होगा, कभी भी प्रकट नहीं होगा। का अतिशय अस्तित्व नहीं पुरुष जो नारी को माने, अपनी भोग्य पाशकता है पूर्णता। न वह जो संग्रह करे सामग्री, न वह जो क्रोधी है जा सके माया से पार। इसलिए त्यागो इन्हें सन्यासी और निर्भीक होके गाओ ओम तत्सत ओम। इसका संस्कृत भी बहुत सुंदर किया है। कामख्यातर्थलिप्सा कलुषित हृदये काशते नैव सत्यम भोग्या श्री मन्यते यो न स भवति विभु। काम्यमानस्य किंचित् नो चैव क्रोधमथ कथमुत स भवेना भवेत् मायया वै विमुक्तः तत् सन्यासीन सुदूरं परिहर सकलं घोषयो ओम तत्सत् ओम सदा ओम अहम। तो यहाँ स्वामी जी कहने जा रहे हैं कि truth never comes where lust and flame of greed, जहाँ पे अशुद्धि है वहाँ सत्य प्रकट नहीं हो सकता। इसके पहले के श्लोक में हमने देखा कि तर्क युक्ति के द्वारा, अध्ययन के द्वारा तत्वों को समझाया था। इसके बाद इस श्लोक में स्वामी जी यही समझाते हैं कि इस साधन मार्ग में तत्व युक्ति के द्वारा हमने जान लिया कि कैसे हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से पार जाना है, तो हमें कैसे इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। अभी इसमें साधन के बारे में स्वामी जी कहते हैं कि इस तत्व का अनुभव करना है तो उसमें जो विघ्न आएंगे, बाधा आएंगी, तो उसको भी कैसे पार करना है। ये स्वामी जी कहते हैं कि जहाँ मान, कीर्ति, यश ये सब आते हैं वहाँ सत्य प्रकटित नहीं होता है। जहाँ जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि जहाँ राम वहाँ काम नहीं, जहाँ काम वहाँ राम नहीं, तुलसी दोनों रह न सके रवि रजनी की कथा। जैसे सूर्य और अंधेरा एक साथ नहीं हो सकते, वैसे जहाँ काम वासनाएं है वहाँ ईश्वरी तत्व प्रकट नहीं हो सकता। तो उसके लिए क्या चाहिए? हमारा हृदय स्वच्छ चाहिए। जैसे मैंने एक कहानी कही थी भगवान बुद्ध की कि जो अच्छी चीज़ रखनी है तो उसके लिए हमारा पात्र भी उतना पवित्र चाहिए। जो भगवान बुद्ध एक जगह पे भिक्षा के लिए गए थे तो वहाँ दूध की खीर देने लगे थे, तो देखा बुद्ध के हाथ में जो बर्तन था वो गंदा था, उनके हाथ कीचड़ लगा था। तो जो भिक्षा दे रहे थे उन्होंने बर्तन को लिया, साफ किया, फिर उसमें दूध की जो खीर थी वो डाली। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि ऐसा क्यों किया? तो देखो ये दूध है, कीमती चीज़ है, इसको यदि गंदे बर्तन में डालेंगे तो खराब हो जाएगा, फट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो उसके लिए बर्तन स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। वैसे इस परमात्मा तत्व इतना पवित्र उच्च तत्व है, उसको धारण करने के लिए हमारे चित्त भी कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। इसलिए स्वामी जी कहते हैं ट्रूथ नेवर कम्स वेयर लस्ट एंड फ्लेम एंड ग्रीड ऑफ गेन रिसाइड्स। जहाँ पे ये काम, क्रोध, मद, मत्सर, नाम, वासना, लालसा इन जहाँ पे होगी वहाँ ये तत्व प्रकट नहीं होगा। तो क्या होगा? हम लोग बहुत से प्रवचन सुनते हैं, सप्ताह सुनते हैं, बहुत से कोर्स करते हैं, मेडिटेशन कोर्स करते हैं, कई प्रकार के हम लोग कुछ करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद हम जैसे कि वैसे। क्यों? क्योंकि हमारा पात्र जो है वो धारण करने योग्य नहीं है, अथवा
हम उसको भगवान की कृपा या ज्ञान का वर्षाव सबके ऊपर हो रहा है, लेकिन उस पात्र को हम उल्टा रखेंगे, उसके अंदर नहीं जाएगा, बाहर से ही जाएगा, तो वो टिकेगा नहीं। उसको टिकने के लिए ये साधन चतुष्ट संपन्न हमने पहले दिन देखा था, होना जरूरी है। तो जब तक ये नाम वासना कीर्ति रहेंगी तब तक उस तत्व को धारण नहीं कर पाएंगे हम। तो इसके लिए हमें शुद्ध होना पड़ेगा। तो यह विघ्न, साधना के मार्ग में जो विघ्न है, इस श्लोक में स्वामी ने कहा है, नो मैन हु थिंक्स ऑफ वुमन एज हिज वाइफ कैन एवर परफेक्ट बी। या स्वामी जी कहते हैं जो, हाँ, यहाँ जैसे ठाकुर कहते हैं कि काम और कांचन यही हमारे जीवन के सबसे बड़े साधना के विघ्न है, बाधा है। तो वहाँ नो मैन हु थिंक्स ऑफ वुमन एज हिज वाइफ कैन नेवर परफेक्ट बी। यहाँ जो पुरुष है वो स्त्री को यदि कामासक्ति से देखता है तो कभी पूर्णत्व में नहीं पा सकता, पूर्णत्व को नहीं पा सकता। और जो स्त्री पुरुष को भी यदि काम वासना की दृष्टि से अथवा जो कुछ हमें उनसे प्राप्त हो ये दृष्टि से देखेंगे, वो भी पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि जहाँ दो चीजें आती हैं वहाँ पे एकत्व का हमें लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान कैसा है, एक है, दो नहीं है। हम एकोस्याहम बहुस्यामी, हम एक ही थे, वासनाओं के कारण हम इस बंधन में आए हैं, तो वासना ही हमें जकड़ देती है। तो ये नाम, यश, जो कुछ धन, लालसा उसकी होते हैं, उस लालसा हमको पकड़ के रखती है। तो आगे कहते हैं, नॉर ही हु ओन्स द लीस्ट ऑफ थिंग्स, नॉर ही whom anger chain can ever pass through Maya's gate। ये जो सागर दंड है, जो चेन है हमें बांध के रखते हैं, वो कौन से है? ये क्रोध है, आसक्ति है, ये माया के ये जो रूप है वो हमें इसमें से जाना नहीं देती, तो उसको हमें तोड़ना चाहिए। तो कैसे स्वामी जी कहते हैं, सो गिव्स डिजर्व एंड सन्यासी बोल्ड से ओम सतो whom माया चेन कैन नेवर पास थ्रू माया's गेट। ये जो काम, क्रोध, आसक्ति, लोकेशना, वित्तेशना, पुत्रेशना हमने देखे थे, ये हमें बांध के रखते हैं। तो इसको जब तक हम पार नहीं कर पाएंगे तब तक हम लोग बंधन में रहते हैं। तो बड़े बड़े लोगों का भी हमने देखा है कि सब कुछ त्याग दिया है, किंतु लोकेशना है या और भी वासना है, वो उसको बांध के रखती है। और स्वामी जी का जीवन इसका प्रत्यक्ष उदाहरण था। एक बार घटना हम देखते हैं, स्वामी जी आबू पर्वत में थे, तो तुरानंद जी महाराज उनको मिले, तो स्वामी जी का अचानक एक भावावेग से करने लगे, देखो हरि, मैं तुम्हारा धर्म भी मैं कुछ समझता नहीं, लेकिन मेरा हृदय विशाल हो रहा है, मैं दूसरों का दुख, यातना, पीड़ा मैं समझ सकता हूँ और उनके लिए कुछ करना है। और बाद में वही स्वामी विवेकानंद जब बम्बई में थे, शिकागो जाने के पहले, तब तुरानंद जी महाराज ने देखा कि जैसा कोई शेर होता है, जैसे पिंजरे में ऐसा आपने ही इसमें घूमते रहता है, वैसे स्वामी जी वाराणसी में घूम रहे हैं और उनके मुख से एक श्लोक निकल रहा है, अहंकारम सुरापानम प्रतिष्ठा शुक्रिष्टा गौरवम घोर गौरवम त्रयम त्यक्त्वा सुखी हुए। जैसे तुरानंद जी महाराज वर्णन करते हैं कि एक शेर अपने में ही है, कि किसी को दुनिया क्या चल रहा है उसका ख्याल नहीं है, और उनके मुखों से ये श्लोक की आवृत्ति हो रहा है। मानो कि शिकागो में जाने के पहले उन्होंने सब कुछ देखा था कि ये सब कुछ मुझे मिलने वाला है, गौरव मिलने वाला है, ये उसके कारण अहंकार आने वाला है, मुझे प्रतिष्ठा मिलने वाली है, तो उससे कैसे मुझे प्राप्त करना है, स्वामी जी उन्हें मानो अनुभव कर रहे थे, उसको कैसा जानना है। तो यही अहंकारम सुरापानम, अहंकार कैसा है कि सुरापान, कोई शराब पीने के बाद उसको भान नहीं रहता, ऐसे अहंकार है। गौरव कैसा है, गौरव घोर गौरव, मैंने प्रतिष्ठा में मिलती है, कोई हमारा गुणगान करता है तो क्या होता है, हम ज़्यादा बंधन में पड़ते हैं। घोर गौरव मैंने नरकों में भी कनिष्ठ नरक ऐसा है। और प्रतिष्ठा कैसे है, शुक्री निष्ठा, निष्ठा में भी शुक्र मैंने सुवर की निष्ठा जैसे। और त्रयम त्यक्त्वा सुखी भवेत्, स्वामी जी कहते हैं कि तीनों का त्याग करो और सुखी हो जाओ। तो ये स्वामी जी का जीवन इस श्लोकों में सन्यासी के सांग के द्वारा स्वामी जी यहाँ व्यक्त करते हैं। तो हमें
इस आसक्ति को, इस सब चीज़ों को त्यागना है। और जो यहाँ स्वामी जी कहते हैं ना कि नो मैन हु थिंक्स ऑफ वुमन एज इफ फाइव कैन एवर परफेक्टली। हम इसके कई उदाहरण भी देखते हैं कि जब तक हम कोई भी चीज़ को बुरी दृष्टि से देखते हैं तब तक हमें वो परमात्मा तत्व कभी भी हमारे अंदर आ नहीं सकता। रामायण में भी हम देखते हैं, वचनामृत में भी ठाकुर जी कहते घटना कि रावण जब सीता को उन्होंने लेके आया था और उसको अनेक प्रलोभन के द्वारा अपना करना चाहता था, तो शायद कुंभकर्ण के पास हो गए तो कुंभकर्ण ने कहा कि अरे तुम तो मायावी हो, तुम कितने प्रकार के रूप ले सकते हो, तुम इतना तुमको क्या करने की जरूरत है, तुम राम का रूप धारण करो और सीता के सामने खड़े हो जाओ, सीता तुम्हारे पैर में आएगी, क्योंकि राम तो उनका सर्वस्व है। तो रावण ने कहा कि हाँ, मैं सभी रूप धारण कर सकता हूँ, लेकिन राम का रूप मैं धारण करूँगा तो मेरे अंदर ये सब दुर्वासना है, जो कुछ बुरी, सब कुछ निकल जाएगा। तो ये है जब हमारे अंदर वो तत्व प्रकट होगा कि दृष्टि हमारी बदलेगी, कब? जब हम उस तत्व को एक वही दृष्टि से देखेंगे कि वो परमात्मा का ही रूप है, तभी आदमी उस बंधन से पार जाएगा। तो तभी हम उस माया के पार जाएंगे। Whom anger chains can ever pass through Maya's gate। तो उस माया हमें आगे जाने का रास्ता देगी। सो गिव दिस अप, ये सब त्याग दो, सब छोड़ दो और सन्यासी बोल से ओम तत्सत ओम, और उस गान का धीरे उच्चार करो कि मैं वही तत्व हूँ। आगे के श्लोक में स्वामी जी कहते हैं, हाउ दाउ नो हो व्हाट whom can hold thee, how thou know what whom can hold the train, the sky, thy roof, the grass, thy blade and fruit, what chance may bring, well cooked or ill, judge not, no food or drink can tend that noble self, which knows itself like rolling river free, thou ever be, सन्यासीन बोल से ओम तत्सत ओम। इसमें जो संस्कृत अनुवाद सुंदर हुआ है, नैवागारे अभिमाने भवतु तव महन् नास्ति किंचित् उपयुक्तम् गेहात् छादो वियद्वा कथमपि भवतु शांति रुच्छपलकल्पं नैवाहार्य विचार्यं मधुरं देवदत्तं हि विद्वान् च आसंगो अस्मिन् विमुक्त चलशरीरीव हो घोषयम् ओम तत्सत् ओम। इसका हिंदी अनुवाद भी हम देखते हैं। मत अपना घर को कहो, किस घर के दुर्मित्र, अंबर ही छत है तुम्हें, घास तुम्हारी खाट और खाने को, जो दे समय पका अधपका, ना गुणो न भोजन न पेय ही छू सकते वह तेज, जो जागृत है आत्म में बहती सरिता की तरह, तुम भी बहते जाओ सन्यासी निर्भीक होके गाओ ओम तत्सत ओम। तो जो घर हमें, वो घर को अपना मत करो, आकाश धरती यही सन्यासी के लिए सब कुछ है, जो मिले वही तुम ग्रहण करो, चाहे आधा पका हो या रुचकर हो, उसके ऊपर आसक्ति मत करो। तो ये ईश्वर निर्भरता का तत्व स्वामी जी यहाँ इस श्लोक में कहने जा रहे हैं। जो सन्यासी का वर्णन आता है, करतल भिक्षा तरुतल वास, तो यही स्वामी जी यहाँ वर्णन करते हैं। जैसे मैंने कहा, ये पूरा सॉन्ग, पूरा जो स्तोत्र है स्वामी जी का जीवन है, स्वामी जी का जीवन भी वैसा ही था। हम लोग अहमदाबाद की घटना देखते हैं, जब वो परिव्राजक अवस्था में 4 साल तक भारत का भ्रमण किया, उनके पास क्या था?
एक कपड़ा पहना हुआ और दूसरा झोली में और दो किताबें और कुछ नहीं, पैसे को स्पर्श नहीं किया उन्होंने। फिर भी पूरा भारत का भ्रमण किया। और अहमदाबाद में हम देखते हैं जब वो आए थे और रेलवे स्टेशन कालूपुर रेलवे स्टेशन में एक पीपल के झाड़ के नीचे बैठे थे, तो जो तरवारिया करके सब जज थे उन्होंने देखा एक युवक सन्यासी तेजकुंज सन्यासी बैठा है। तो उन्होंने जाकर पूछा कि स्वामी जी आप कहाँ से आए? तो स्वामी जी ने कहा मैं तो घूमता फिरता सन्यासी हूँ, और कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे? तो मैं क्या, तो देखो ऊपर आकाश है नीचे धरती है, सन्यास के लिए क्या है? तो यही स्वामी जी ने यहाँ कहा है कि उनके लिए वही जीवन था उनका कि Have thou no home, that home can hold the brain, the sky, the roof, the grass, the wind and food. बस यही स्वामी जी ने अहमदाबाद में कहा था, स्काई दैट रूम, तो आकाश मेरा छत है, ये धरती मेरी बिछाना है, और जो फूड उसके लिए क्या कहते हैं, व्हाट चांस में ब्रिंग वेल कुक और इल जज नॉट, जो भी सूखा रुका जो मिलता है उसके ऊपर आसक्ति, शरीर धारण के लिए मुझे जो चाहिए वही भावना से तुम उसको ग्रहण करो। व्हाट होम कैन होल्ड ब्रेन, तुम किस घर के हो? ये घर को तो एक दिन छोड़ना है, कभी ना कभी उस घर को मुझे छोड़ना है, और जो भी भोजन मुझे मिल रहा है वो हमें शरीर के पोषण के लिए मिल रहा है, शरीर के लिए, वो इसमें से कोई भी चीज हमें छू नहीं सकती। विच नोज इटसेल्फ, इस तत्व को जो जानता है वही स्वरूप को जान सकता है, और उसके ऊपर कोई भी परिणाम नहीं हो सकता। तो स्वामी जी को कहने का मतलब यहाँ यही है कि ममत्व मत रखो। घर में आदमी सबको घर छोड़ के झाड़ के नीचे रहना ऐसा नहीं है कि घर का प्रति ममत्व, मेरा भाव, ये गलत धारणा से हम लोग क्या होते बंधन में फंसते हैं। तो ये है भगवान ने मुझे रहने के लिए शरीर पोषण के लिए दिया है, बस वही रखो। तो तब और अंदर से क्या हो, अनासक्त भाव से रहो। तो ये भाव जब रहेगा तब हम लोग उसमें आसक्त नहीं हुए और बंधन का कारण नहीं होगा। तो यही स्वामी जी को कहते हैं ना, फूड व्हाट चांस में ब्रिंग वेल कुक्ड और इल जज नॉट, नो फूड और ड्रिंक कैन टेंड दैट नोबल सेल्फ। जो स्वरूप को प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने तत्व को जाना है, उसमें उसको ये जो कुछ अच्छा खाना हो या बहुत ही डिलीशियस फूड हो, उसके ऊपर कोई परिणाम नहीं करता। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ब्रह्मज्ञानी या पहुँचे हुए किसी महात्मा को हम लोग रसगुल्ला देंगे और उसको रसगुल्ला भी और करेला भी दोनों ये नहीं लगेगा, ऐसा नहीं। उसको भी वो रसगुल्ला मीठा लगेगा, हमको भी मीठा लगता है, उसको भी मीठा लगेगा, लेकिन हमको खाने के बाद फिर से खाने की जो वासना आएगी वो उसमें नहीं आएगी। जैसे ठाकुर कहा करते थे कि तलवार है, तो तलवार जब सोने की बन जाती है तो उसके द्वारा युद्ध में काम नहीं आएगी। तो वैसे उनका जीवन वो आकार वही है, लेकिन हमारे अंदर विकारों का परिणाम आता है, उनके अंदर कोई परिणाम नहीं आता, यही फर्क होता है। स्वामी मिर्जानंद जी महाराज, उनका जीवन भी हम देखते हैं। स्वामी आत्मस्थान निवास करते थे कि जब वो प्रेसिडेंट बने, हम महाराज का फोटो देखते हैं, दाढ़ी है और ऋषितुल्य व्यक्तित्व था। एक दिन कुछ उनका विशेष दिन था, जन्मदिन या जो भी था, तो कोई उनको सिल्क के कपड़े दिए थे, वो कपड़े पहने थे और रुद्राक्षी माला पहने महाराज हुक्का लेते थे महाराज। तो राजा जैसा चेयर पे बैठे हैं, तो किसने कहा महाराज यू आर एंजॉइंग योर प्रेसिडेंसी, आप तो मध्य मिशन के अध्यक्ष हैं, आप कितना ये है। तो उन्होंने गंभीर होकर कहा यस आई वॉज एंजॉइंग व्हेन आई वॉज सर्विंग स्वामी जी माय गुरुदेव। मैं जब गुरुदेव की सेवा कर रहा था तो कभी महीनों तक वो सोए नहीं थे, जो कभी मिला नहीं मिला ऐसी स्थिति में वो है। श्यामला ताऊ उनका जीवन देखते हैं, कुछ नहीं था, 16 18 घंटे ध्यान में डूबे रहते थे। तो वो दिन में एंजॉय करता था, ये नहीं। तो इनका भाव देखिए, हमारे लिए ऊपर का जो मिलता है उसमें हम सुख दुख को एंजॉय करते हैं, ये लोग इससे परे होते हैं। तो यही स्वामी जी तत्व यहाँ कहते हैं। इवन बोधिचंद जी महाराज के भी बारे में कहा जाता है, उनको
अभी ठाकुर को जो अनुभव होता है उसमें सब निकाल कर अध्यक्ष महाराज को दिया जाता है, कृष्ण महाराज को दिया जाता है। तो एक बार सब सजा के महाराज के सामने डाला गया। तो एक जो उनके पास थे उन्होंने कहा कि महाराज आप इतना उम्र हो गया फिर भी आप इतना सब आपको आपके पास आता है। तो महाराज ने कहने लगे देखो मैं उत्तरकाशी में था तो 4 दिन की सूखी रोटी वो गंगा पानी में डुबा के खाता था, उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं, वो भिक्षान नहीं। तो उनका भाव कैसा था देखिए। तो ये भाव ही हमें आसक्ति से बचा देता है। तो हमें यही ख्याल रखना है जो मुझे मिल रहा है वो शरीर पालन के लिए मिल रहा है, उसमें संतुष्ट मानो, उसमें आनंद मानो और उसमें आसक्त हो जाओ। आसक्त होने से हम लोग बंध जाएंगे। वो गीता में भी यही कहा है ना, सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्त चिकीर्षु लोक संग्रहम। तो संसारी लोग इन चीज़ों में आसक्त से कर्म करते हैं और फिर से वो कर्मों में बंध जाते हैं। लेकिन आत्मज्ञ लोग क्या करते हैं, अनासक्त होकर करते हैं, तो लोक कल्याण के लिए करते हैं, तो उसमें वो बंधन कारक नहीं होता। तो यही तत्व स्वामी जी ने इस श्लोक में कहा है। आगे का जो श्लोक है 12वां, few only know the truth, the rest will hate and laugh at the great one, but pay no heed. Go thou free from place to place and help them out of darkness, Maya's way, without the fear of pain or search of pleasure. Go beyond them. Or Sannyasi bold say, Om Tat Sat Om। इसका संस्कृत है तत्वज्ञो दुर्लभोत्र ध्रुवम इदम इह तत् ज्ञानहीनो हि अवज्ञाम कुर्यात्वां च उपहासं तदपि वत् महन् त्वं न पश्ये परं च देशात् देशान्तरे तन् विरहित निकरो दुःख भीतिं सुखांशां त्यक्त्वा मोहं जनानां द्रुतं अपरहर विघोषयम्। ओम तत्सत् ओम। इसका हिंदी अनुवाद ऐसा है, सत्य जानते कोई ही शेष करेंगे द्वेष, व्यंगवान जो साधते तुम पर तेजस्वी, ना दो कोई ध्यान, रहो अग्रसर मुक्त भ्रमण करो दो सहयोग, जीते जो अज्ञान वश माया से आक्रांत, बिना विचारे कष्ट भय या खोज ही आनंद, जाओ इन दोनों के पार, सन्यासी निर्भीक होकर कहो ओम तत्सत् ओम। समझ कहते हैं few only know the truth, कुछ विरले लोग हैं गिने चुने हैं वही इस सत्य को तत्व को जानते हैं। तो पहले श्लोक में स्वामी ने सन्यास के जीवन में जो विघ्न बाधाएं आते हैं, साधकों के जीवन में जो विघ्न बाधाएं आती है उसकी चर्चा की, वो हमने देखी। अभी इसमें बाह्य अंतराय, बाह्य विघ्न जो आते हैं, आंतरिक विघ्न के बाद बाह्य विघ्न आते हैं, उसकी चर्चा यहाँ स्वामी जी करते हैं कि रास्ता कैसा है। शुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पतस्तत् कवयो वदन्ति, ये अतिशय कठिन है चलने के लिए, इसमें बहुत से विघ्न बाधा आते हैं। तो इस रास्ते में चलते समय जो विघ्न बाधा आती है उस विघ्न बाधाओं को नष्ट करने के लिए, दूर करने के लिए हमें ज्ञान होना जरूरी है। वो ज्ञान कैसा आएगा, सत्संग से आएगा। सत्संग के द्वारा उस विघ्न बाधाओं को हम दूर कर सकते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं few only know the truth, the rest will hate and laugh at thee। तो ये जो उसके पीछे जो सत्य है वो कम लोग जानते हैं, बाकी लोग उसको कोई द्वेष करेगा, कोई ये करेगा। ये महात्मा स्वामी कहते हैं कि and laugh at the great one, ये महात्मा, ये विशाल आत्मा, तुमको क्या करेंगे लोग, तो laugh at the
कोई हंसेगा, कोई द्वेष करेगा, जो पहले श्लोक में स्वामी जी कहा ना, कोई हमें झिटकारेगा, कोई स्तुति करेगा। ये यहाँ भी यही तत्व है, जो कोई स्तुति करेगा, कोई हंसेगा, कोई तुमको गाली देगा, तो तुम गो डाउन द ट्री फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड हेल्प देम आउट ऑफ डार्कनेस। इसको ख्याल मत करो। स्वामी जी खुद कहा करते ना, हाथी चले बाजार में, कूदते होके हजार। हाथी को कोई परिणाम नहीं होता, वैसे लोग उनको क्या बोलेंगे उसका ख्याल मत करो। गो डाउन द ट्री फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड हेल्प देम आउट ऑफ डार्कनेस। तुम्हारा काम है क्या है कि दूसरे को मदद करो, उनको इस बंधन से बाहर आने के लिए मदद करो। प्लेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड हेल्प देम, और क्या करो, आउट ऑफ डार्कनेस मायाज भेल, विदाउट द फेयर ऑफ पेन ऑफ सर्च ऑफ प्लेजर। सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है इसकी चिंता मत करो, जाओ और उनको मदद करो, उनको इस माया के बंधन से बाहर निकालो। यही तुम देखो, और उसके बाद चलते समय, ये करते समय क्या होगा तुम्हें, तो लाभ, द रेस्ट विल हेट एंड लाभ एट यू। कुछ लोग तुम्हें हंसेंगे, कोई तुम्हें गाली देंगे, बट पे नो हिट, उसकी तुम से परवाह मत करो, उसके पीछे मत ख्याल मत दो। तुम उस सबको बाजू में रखकर go down the tree from place to place and help them out of darkness of Maya as well, without the fear of pain and search। ये सब की चिंता मत करके उनको मदद करो, उनको बाहर निकालने के, मुक्ति के मार्ग पर लाने के लिए उनको मदद करो। क्षणपि सज्जन संगति रेखा भवति भवान्वये तदनी नौका। तो यही तत्व स्वामी जी कहते हैं कि हमें जाकर उनको सत्संग देकर, उनको आत्मज्ञान देकर, उनको ज्ञान देकर इस बंधनों से मुक्त करना है। और ये करते समय कई लोग हमें गाली भी देंगे, कोई स्तुति करेंगे और कुछ भी बोलेंगे, हमें उसको ख्याल नहीं करना है, हमारा काम करते रहना है। यही तत्व स्वामी जी का है। और आखिरी के स्टांजा में स्वामी जी कहते हैं, Thus day by day till karma's power spent, release the soul forever. No more is birth, nor I, nor thou, nor God, nor man. The I has all become, the all is I and bliss. Know thou art the sannyasi. बोल से ओम तत्सत ओम। इसका संस्कृत भी देखते हैं। नैवागारे अभिमाने भवतु तव महन्नास्ति किंचोपयुक्तम गेहा अच्छोद व्यत्वा कथमपि भवतु शांति रुच्छपतल्पम नैवाहार्यं विचार्यं मधुरम अधुरम देवत एतम हि विद्वान् च असंगो अस्मिन् विमुक्तः अचल शरीरीव भोघोषयम् ओम तत्सत् ओम। हिंदी में अनुवाद ऐसा है, ऐसे ही जीते रहो जब तक कर्म हो नाश, मुक्त करो आत्म को जन्म की हो न आस। न मैं न तू न प्रभु नहीं मानव मान, मैं तो सब कुछ हो चुका हूँ, मैं तो हूँ आनंद। जानो तुम तो ही वही सन्यासी, निर्भीक होकर गाओ ओम तत्सत् ओम। Thus day by day the karma's power spent। स्वामी जी कहते हैं प्रारब्ध का क्षय होने तक ये शरीर ऐसा ही रहेगा। और रिलीज द सोल फॉर एवर, नो मोर इज बर्थ। तो ये फिर से जन्म हमें नहीं मिलेगा। कब? जब कर्म का क्षय होगा, फिर इस जीवात्मा को चिर मुक्ति मिलेगी, फिर कभी भी हमें जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ेगा। Nor I, nor thou, nor God, nor man, the I has all become, the all is I। तो मैं नहीं हूँ, तुम भी नहीं हो, देव मनुष्य कोई नहीं है, तो एक ही तत्व जो मैं, जो आत्मा, वो परमात्मा, वही सब में व्याप्त है। तो सर्वम खल्विदम ब्रह्म जो हमने देखा, यही तत्व स्वामी जी यहाँ कहते हैं। तो ऑल इज आई,
एंड दिस नो द वर्ड, ये तत्व को जानो कि वही तत्व सब जगह फैला हुआ है। इसमें बहुत गहन बात स्वामी जी कहते हैं कि thus day by day till karma's power spent release the soul forever। हमें जब तक हमारे जो कर्म है उसका क्षय नहीं होता तब तक हमें मुक्ति नहीं होती, क्योंकि हम देखते हैं कई शास्त्रों में वर्णन आता है कि हमारा जो जन्म अभी हमें मिला है तो हमें हमारे कर्मों के द्वारा, प्रारब्ध कर्मों के द्वारा ही हमारा जन्म हुआ है। जो 3 प्रकार के कर्म हमारे शास्त्रों में गए हैं, एक संचित, प्रारब्ध और तीसरा क्रियमान। तो ये जो कर्म होते हैं 3 प्रकार के, उसके द्वारा ही हम लोग जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते रहते हैं, सुख दुख का अनुभव करते रहते हैं। तो ये संचित क्या है? संचित माने जिसको हम कह सकते हैं कि पूर्व का हमारा पूरा स्टॉक जो है कर्मों का, वो है संचित। मुझे जिसको कह सकते हैं गोदाम, हम लोग बाजार से एक बोरा चावल लेके आए और हमारे डब्बे में भर के रखा, तो ये क्या हुआ, हमारे डब्बे में एक स्टॉक हो गया। वो हमारा संचित पूर्व जन्मों में कई जन्मों में, हमारे कई जन्मों हुए हैं। तो जो एक कर्मों की जो संस्कार है, जो जन्मों जन्मों के हमारे किए हुए कर्मों के संस्कार, वो एकत्रित जो हम होते हैं उसको संचित करते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमने एक बोरा चावल लेके आकर हमारे डब्बे में रखा, वो हमें कहीं प्रकार का इधर उधर का करके सब इकट्ठा करके रखा है, वो हमारा संचित हुआ। अभी इस संचित में से कुछ कर्म जो हमें इमीडिएट फल देने वाले हैं, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, इसके द्वारा इस शरीर की रचना होती है, उसको हम प्रारब्ध करते हैं। क्योंकि सब कर्म नहीं हो, जिसको हम क्या करते हैं कि हमारा डब्बे में भरा है, तो हम क्या करते हैं जितना भी यहाँ 4 मेहमान आएंगे तो उसके हिसाब से हम निकालते हैं। तो वैसे जो संचित हमारा बहुत बड़ा है, लेकिन हमको जो इमीडिएट इफेक्ट देने वाले हैं, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, उसको हम निकालते हैं और वही हमारा प्रारब्ध, वही उसको लेके हम लोग इस शरीर की रचना होती है। तो शुभ और अशुभ दोनों होते हैं, क्योंकि शुभ होने से भी ऐसे हम नहीं ला पाएंगे और अशुभ होने से भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि शुभ अशुभ का मिश्रण है, इसलिए तो ये जीवन मिला है। और उसके अनुसार हमारे जो कर्म होते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म धारण करने के लिए शुभ और अशुभ का मिश्रण होना जरूरी है। ऐसा इसलिए स्वामी जी कहते हैं ये जगत पूरा का पूरा अच्छा या पूरा का पूरा बुरा कभी नहीं हो सकता, वो ऑलवेज सब समय मिश्रण रहेगा शुभ और अशुभ का। क्योंकि जैसे स्वामी जी तुलना देते हैं कि पूरा हॉट आइस मैंने उष्ण बर्फ का हम कल्पना नहीं कर सकते, हो नहीं सकता। जैसे कोल्ड फायर, अग्नि ठंडा हो नहीं सकता, वो तो वैसे पूरा जगत पूरा का पूरा अच्छा कभी नहीं हो सकता। किसी आदमी पूरा जन्म से लेकर एकदम स्वस्थ सभी दृष्टि से नहीं हो सकता, उसको शारीरिक मानसिक आर्थिक सभी प्रकार के छोटे मोटे, किसी को ज़्यादा है किसी को कम है, हमारे जैसे प्रारब्ध होगी वैसे आएंगे। तो शुभ कर्म पूरे होंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे और स्वर्ग का भोग लेके फिर से वो समाप्त होंगे, फिर से मनुष्य में आना पड़ेगा। और बहुत अशुभ बुरे कर्म होंगे तो नरक में जाएंगे, उसका जो प्रायश्चित होता है फिर से आना पड़ेगा मनुष्य में। तो ये मनुष्य को प्रारब्ध के कारण हमें ये शरीर धारण करना पड़ा है। ये शुभ और अशुभ का कर्मों का हमारा मिश्रण है। और जैसा मैंने कहा कि क्रियमान, मैंने हमने देखा कि प्रारब्ध क्या है कि जो हमारा रखा है गोदाम में उससे खाने के लिए जो निकाला वही है। और क्रियमान क्या है कि जो हमने उसमें से कुछ निकाल के हमने खेत में उसको बो दिया, अभी वो फल देने वाला है, वो उसको क्रियमान करते हैं। जैसे और एक उदाहरण देंगे तो जैसे बाण है, हाँ, कुछ बाण का पूरा देखो धनुर्धर होता है, उसके पीछे बाण का एक टोकरी रहता है बड़ा, उसमें कई 50 बाण रहते हैं। वो हमारा क्या हो गया संचित, पूरा स्टॉक है उसके पास में, उसमें से कुछ उसने प्रत्यंचा पर चढ़ाया उसको, हाँ, वो अभी छुटा नहीं है, अभी है उसके हाथ में है, हाँ। तो ये एक हो गया और कुछ छूट गया हाथ से, वो उसका कंट्रोल नहीं है, वो चला गया, तो वो हो गया प्रारब्ध।
और जो अभी उसने छोड़ा नहीं है, उसके हाथ में है, क्रियमान उसको करते हैं, उसको वो चेंज कर सकता है। तो वो खेत में बोया हुआ है, हम नष्ट भी कर सकते हैं, उसको उठा के फेंक भी सकते हैं, लेकिन वो हाथ से छूट गया है, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल है, उसका परिणाम हो गए, वो प्रारब्ध है। तो ये 3 कर्मों के कारण उसमें से प्रारब्ध कर्म लेकर हम लोग ये शरीर धारण करते हैं। तो जैसे मैंने कहा, मनुष्य शरीर ये दोनों का मिश्रण है। तो इसलिए हमारा शास्त्र कहता है कि नया कर्म करने के लिए हमको बहुत समझ कर सोच कर करना चाहिए, क्योंकि नया कर्म जो करेंगे वही हमारे संचितों में जाके पड़ेगा, और उसमें जो प्रबल होंगे वो प्रारब्ध धारण करके फिर से हम ये होगा। एक हो सकता है इसमें, प्रारब्ध का भोग तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो कितने महापुरुषों के जीवन में भी हमें देखते हैं, उनको प्रारब्ध का भोग आया है। अवतारी पुरुषों में अपने जीवन में दिखाया कि उनको भी रोग हुआ है, बड़े बड़े उनकी यातना हुई है, कष्ट हुआ है, क्योंकि उन्होंने लीला करके देखा, उनके लिए लीला था। लेकिन महापुरुषों के जीवन में भी देखता उनके प्रारब्ध आए हैं, लेकिन प्रारब्ध उनके ऊपर परिणाम नहीं कर पाए, उन्होंने उसको एज इट इज की कुछ नहीं है, जीवन वैसा ही चल रहा है, भगवत शरणागत होकर चल रहा है, तो उसका परिणाम उसके ऊपर नहीं हुआ है। तो ये प्रारब्ध तो आएंगे सबको, क्योंकि हमारा ही है, वो बैंक का लोन है, वो आया है हमको। लेकिन यदि भगवत शरणागत होकर हम उस प्रारब्ध का भोग करेंगे, प्रार्थना, उनको भगवान की शरणागति होगी और भगवान की कृपा होगी, तो संचित नष्ट हो सकता है। हमारा स्टॉक जो रखा है ना, उसको कल आग लग गई तो जल गया, नष्ट हो गया, या उसको चिटिया लगी, उठा के पानी गिर गया, नष्ट हो गया। संचित नष्ट हो सकता है, गोदाम में जो है ना वो नष्ट हो सकता है। तो इससे कब होगा? यदि हम प्रारब्ध अच्छा से सहन करते करते भगवत शरणागति से क्रियमान अच्छा करेंगे, तो भगवत कृपा से ये संचित नष्ट होगा, प्रारब्ध नष्ट नहीं होगा। उसके लिए उपाय एक ही है, भोगना। लेकिन कैसे भोगना है? भगवान को शरणागत होकर भोगना है। तो माँ शारदा देवी ने कहा है, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हमारा बहुत बड़ा कुछ होने वाला है कि छूट लग जाएगी, बस एक निमित्त होगा, चला जाएगा। तो ये भगवान शरणागति होने से एक फायदा होगा। तो हमें 2 प्रकार की बुद्धि भगवान ने दी है, एक कुमति और सुमति। दुर्बुद्धि जिसको कहते हैं, सुबुद्धि कर सकते हैं। तो ये हमारे शुभ और अशुभ कर्मों के कारण हमें प्राप्त हुई है। तो हमें सत्संग यदि मिलेगा, अच्छा विचार मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस कुमति को भी सुमति में परिणित करेंगे और हमारे हाथ से शुभ कर्म होगा। और शुभ कर्म होने के कारण फिर से हमारा जो संचित है वो शुभ बनेगा या नष्ट कम होगा। उसके द्वारा जो प्रारब्ध बनेगा वो ऐसा बनेगा कि जिसके द्वारा हम भगवत शरणागत सुचिनाम सिमताप गए, तो जैसे हम भगवत प्राप्ति में ही लीन हो गए जन्म से ही, और धीरे धीरे हम लोग इस प्रारब्ध का नाश होगा, तब हम लोग मुक्त हो पाएंगे। तो जब तक हमारा लोन है तब तक बैंक हमें छोड़ने वाली नहीं है, वो हमको ब्याज के साथ आते ही रहेगा। तो ये संचित नष्ट हो सकता है, लेकिन प्रारब्ध हमें भोगना ही पड़ेगा। उसको एक ही उपाय है, भगवान के शरणापन्न होकर रहेंगे तो सुख दुख आएंगे, लेकिन हमें उसका परिणाम नहीं होगा। तो ये प्रारब्ध भोगते समय हमें भगवान की शरणापन्न होकर रहना है, तो हमें वो प्रारब्ध परिणाम नहीं करेगा। अभी उसमें भी 2 है, कहीं कुछ कुछ कर्म ऐसे होते हैं उसका हम मनुष्य बुद्धि से उसका तुलना नहीं कर सकते। जैसे हम देखते हैं कि पांडवों की जो है, पांडव देखिए, वो तो एकदम जिसको कहते हैं कि दैवीय अंश से प्रकट हुए हैं, फिर भी उनके जीवन में देखिए कैसे यातना, कितने दुख कितना है। युधिष्ठिर जो धर्मराज कहते हैं, उन्होंने भी अपने पितुल्य म्हणजे धृतराष्ट्र पिता उनके बंधु से भी बड़े थे, तो उन्होंने दूध में उनको खींचा, तो भी उनको भी उन्होंने वो आज्ञा को स्वीकार किया। इतने दैवीय अंश से उनके होते हुए भी उनकी कैसी मति हो गई, और उसके कारण द्रौपदी को कितनी यातना भोगनी पड़ी। तो ये कुछ ऐसे कर्म होते हैं कि जिसका मनुष्य बुद्धि से हम लोग सोच नहीं सकते, लेकिन जो कॉमन कहा जाता है कि संचित को हम लोग नष्ट कर सकते हैं,
प्रारब्ध को प्यार से भोगना है, भगवान को शरणागत करना है। तो उसका हिसाब किताब हम ठीक से रखेंगे तो ये भगवान की कृपा होगी और वो कृपा के कारण संचित नष्ट होगा। तो उसमें प्रारब्ध में भी देखिए कई बार ऐसा होता है, हम देखते हैं कुछ घटना हमारे हाथ में नहीं होती है। जैसे अचानक हम कहीं जा रहे हैं तो किसी को धक्का लग गया, वो तो हमारा पर्पस था नहीं, हो गए, तो वो हमें इतना बाधक नहीं है। लेकिन हम सोच कि हाँ उसको दिखाऊंगा तो वो हमें बुरा स्टॉक में चला जाएगा, वो हमको फिर से अशुभ कर्मों में खींचेगा, वही हमारा स्ट्रॉन्ग प्रारब्ध बनेगा। हमारा उद्देश्यहीन कुछ क्रिया होती है, हमारा उद्देश्य नहीं था, वो भगवान की प्रार्थना करेंगे वो निकल जाएगा। लेकिन कोई उद्देश्य के साथ हम उसको करेंगे तो वो दुख देता है। लेकिन जैसे कहा जाता है कि हम कोई परीक्षा देना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बहुत पूरे साल बहुत मेहनत करके बहुत पढ़ाई किया, ट्यूशन लगाया, सब कुछ किया और एकदम परीक्षा के पहले हम लोग बहुत बीमार हो गए। वो हमारे हाथ में नहीं है, तो उसका प्रारब्ध थे हमारे। लेकिन पूरा साल मस्ती कर दिया, देखा जाएगा क्या होता है, और आखिरी में हम फेल हो गए, वो हमारी गलती है, वो प्रारब्ध नहीं है, वो हमारे पीछे के जो दोष है संचित और प्रारब्ध का मिलके। तो ये है हमें जो उद्देश्य है हमारा उसके पीछे, हाँ, तो अच्छा संकल्प कर अच्छा काम करेंगे तो वो हमारा जो क्रियमान है वो अच्छा बनेगा, तो उसके द्वारा संचित शुभ संस्कारों के द्वारा होगा। और जब ये प्रारब्ध का ह्रास होगा, शुभ और अशुभ कर्मों का ह्रास होगा, तब फिर से हमें जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ेगा। तो यही तत्व स्वामी जी ने लास्ट स्टांजा में कहा है। तो ऐसा अद्भुत ये स्वामी जी ने रचा हुआ सन्यासी का गीत हमें वेदांत के चारों महावाक्यों का यहाँ स्वामी जी ने पूरा तत्व बताया है। तो इसका चिंतन वही हमें शास्त्र का अध्ययन करने से, सत्संग के द्वारा कैसे हम इस जन्म मृत्यु के संसार चक्र से पार हो सकते हैं, कि हमें मंत्र रूप से उसका एक हमें जीवन में लाभ हो सकता है। तो आज यहाँ उसका बहुत हम चर्चा कर सकते थे, लेकिन हमें आज यहाँ इसका समाप्ति करते हैं और स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि इस तत्व हमारे जीवन में आकर हमारा जीवन धन्य हो। यही प्रार्थना के साथ ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अगले रविवार से यहाँ एक नया स्वामी जी अहमदाबाद में आए हैं, स्वामी तेजोमयानंद जी महाराज, आशुतोष महाराज। वो अगले रविवार से यहाँ प्रवचन देंगे। उनका अभी तो रामकृष्ण देव की जो आरती हम लोग गाते हैं रोज, खंडन बहुवंदन जो स्वामी विवेकानंद जी रची है, उससे शुरुआत करेंगे। उसके बाद ओम ब्रह्मृतम जो स्तोत्र है वो अब बाद में दूसरा टॉपिक वो ले लेंगे। अभी आप लोग जानते हैं लेखंबा में अपने ठाकुर के मठ का काम चल रहा है, तो अभी मुझे थोड़ा उधर व्यस्त रहना पड़ता है। तो यदि मुझे समय मिला तो मैं दूसरे कोई दिन शनिवार या ऐसा कोशिश करूँगा। लेकिन प्रवचन का सिलसिला जो संडे का रविवार रविवार का चालू रहेगा, महाराज जी यही है, वो अगले संडे से आरती के बाद रामकृष्ण आरती के ऊपर प्रवचन देंगे। धन्यवाद।